नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Gautam Dev Guru Srila Prabhupada की जय, श्री वैष्णव भगवंत की जय. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gaurav Prabhu and Megha Mataji. Thank you so much. Very nice kirtan. Thank you so much. I hope everybody is well, and let's start our evening session. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Dev Gaurvani Pracharini Vishesha Shunyavadi Paschatya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Gaura. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Ram. Hare Krishna. So, welcome to our evening session. और आप लोगों ने सबने सुना होगा कैसे we heard about
His Holiness Bhakti Charu Maharaj getting positive for the coronavirus, and we saw how, as a family, the whole ISKCON family all over the world, everybody is praying for him, from the GBCs to the sannyasis, the devotees to the followers. So everybody, this is how we see ISKCON is a family. And as we become, जैसे हम इस family के member बनते हैं, so then our heart has to include everybody together. और जो एक भौतिक family है और जो भौतिक दोस्त है, और उस family में बहुत फर्क है. और आप देखिए कितने we don't feel alone. At least those who are disciples, they don't feel alone because they see the support coming from everywhere immediately. So we will also do our little bit. We can do with a small sangha compared. I was hearing Jayapataka Maharaj is speaking about Maharaj. Almost 1,000 people are in that conference, Zoom conference. So I still thought कि हम लोग जो हमारी भगवद गीता की क्लास है वो हम कंटिन्यू करें. मैंने हमारी टीम मेंबर से पूछा तो इन्होंने said कि continue. So we continue. But before we continue, what we will do, हम लोग सब लोग मिलके will hear Narsingh Dev आरती and we'll sing. आप लोग म्यूट पे रहिएगा और म्यूट पे रह के we will sing Narsingh आरती and जो आप में से जो लोग प्रार्थना करना चाहें, फिर हम प्रहलाद नरसिंह देव को प्रार्थना कर सकते हैं महाराज के कि अगर नरसिंह देव चाहते हैं और उनका प्लान है तो महाराज की जो तबीयत है वो ठीक कर दें, महाराज ठीक हो जाए. That's how we pray for Vaishnavas. We don't say they can become the cure because we don't know what is the higher plan. जितने भी जो पार्षद हैं महाप्रभु के, they have different plans and Mahaprabhu has plans for them. So we don't know what is the plan. So but we pray कि अगर आपकी, if this is your plan that Maharaj says, then we request that let him be cured fast so that he, we don't, we can get their association again. So we'll hear Narsingh Aarti. Narsingh Aarti करते हुए हम प्रे कर सकते हैं जो भी प्रे प्रार्थना करना चाहें. हमने सुबह प्रभुपाद कृपा संघा से हमने नरसिंह देव आरती सुबह हमने डाल दी थी और वहाँ पर मंदिर के अंदर भी मायापुर में immediately they started Narsingh Yagya and Narsingh Aarti for Maharaj. Immediately it started in hundreds of temples. It has started. So we will do our whatever we can do in the evening now. We will do. So Narsingh Aarti, you can play. Meenakshi Mataji has the link which she wants to play. So we'll play that. और उसके बाद हम लोग सब नरसिंह कवच पढ़ेंगे. आप लोगों में से कुछ लोग नरसिंह कवच पढ़ते हैं हर रोज, कुछ लोग कभी-कभी पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं. So we will together read. We will do the screen sharing, and we will read Narsingh Kavach also together. I will speak, and you can repeat after me by keeping yourself mute. Otherwise, it won't get jumbled out. So we can have the video for Narsingh Aarti. Yes, Prabhu, I'm sharing. Namaste Narasimhaya Prahlada Lada Daine Hiranyakashi Purvaksha Shilatamkar Nakhalaye Ito Nrishingha Parato Nrishingha Yato Yato Yami Tato Nrishingha Bahir Nrishingha
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश তব কারো কামালো বরে দালিতা হিরণ্যকশিপু কানো কেশবদ্রীতা নরহরি রূপা জয় জগদীশ হরে जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीका नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. So now we will read the nursing coach. So I will read it slowly. So I will read and then you can repeat after me. Ronnie Prabhu, can you do the screen share? तो आप सबको नजर, I hope everybody can see it. This is nursing coach from
Brahmanda Puran, and this is sung by Prahlad Maharaj himself. So I will repeat, and then you repeat after me. Narsima Kvacham Vakshe Prahladena Ditam Pura Sarva Raksha Karam Punyam Sarvopadravanashanam Sarva Sampatkaram Cheva Swarga Moksha Pradayakam Dhyatva Narsingham Dvesham Hema Singha Sansitam Vivrittasyam Trinayanam Sharad Indu Samprabham Lakshmi Alingita Vamangam Vibhuti Birupashitam Chaturbhujam Komalangam Swarna Kundala Shobhitam Saroja Shobhitoraskam Ratnakeyuramudritam Tapta Kanchana Sankasham Pita Nirmalvasasam Indradisura Maulishta Spuran Manikya Diptibhi Virajita Padvandam Shankha Chakradihetibi Garutmata Chavinaya Stuyamanam Mudanvitam Swahrit Kamala Samvasam Kritvatu Kavacham Pate Narsingho Me Shirapatu Lokarakshartha Sambhava Sarvagopi Stambhavasa Phalam Me Rakshatu Dhvanim Narsingho Me Dishaupatu Soma Surya Nilochana Smritam Me Patu Narhari Munivarya Stuti Priya Nasam Me Simanasastu Mukham Lakshmi Mukhapriya Sarva Vidya Dipapatu Narsingho Rashnam Mama Vaktaram Patu Induvadanam Sada Prahlada Vandita Narsingha Patu Me Kantham Skandubu Bridanantakre Divyastra Shobhita Bhuja Narsima Patu Me Bhuja Karau Me Deva Vardo Narsima Patu Sarvataha Hidayam Yogi Sadhyascha Nivasam Patu Me Hari Madhyam Patu Hiranyaksha Vakshakukshi Vidarana Nabhim Me Patu Narhari Swanabhi Brahma Sanstuta Brahmanda Kote Akatya Yasya Supatu Me Katim Guhyam Me Patu Guhyana Mantranam Guhya Rupadre Uru Mano Bhava Patu Januni Nararupadre Jange Patu Dharadhara Partayo Asau Narakesari
सुरराजा प्रदापातु पादौ मे नरहरि ईश्वरा सहर्ष शीर्षा पुरुषा पातु मे सर्वसस्तनुम् महोग्रा पूर्वता पातु महाविराग्रजोद्निता महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वलस्तु नैऋता पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखा नरसिंहा पातु वाव्यया सौम्याम्भूषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायका संसार भयता पातु मृत्युर्नरकेसरी इदं नरसिंहा कवचं कवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् या पठे नित्यम् सर्वपापे प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते काम्यते यं यं कामम् तं तं प्राप्नोति असंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां गृहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरग संभूता विशापारणं परम् ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दुरोत्सारण कारणम् भुजे वा ताल पात्रे वा कवचं लिखितं शुभम् कर्मूले धृतं येन सिद्धयै कर्म सिद्धया देवासुरा मनुष्येषु स्वं सम एव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा या पठेन्नियतो नरः सर्वमंगल मांगल्यम् भुक्ति मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहर्षाणि पठेत शुद्धात्मनां निर्णाम कवचस्यास्य मंत्रस्य मंत्र सिद्धि प्रजायते अनेन मंत्र राजेन कृत्वा वसाम्भिर्मन्त्रणाम् तिलकं विनशेद्यस्तु तस्य गृहाभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तां वार्याभिमन्त्र्य च परषेदयो नरो मन्त्रम् नरसिंहा ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये चासुई पुक्षि संभवा गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिविभुविदित्यं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं
करन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सतन्तं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं कर्णिकरशतैर्दिव्यसिमं नमामि। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रहलादोत्तकं श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। Hare Krishna. So thank you so much. I hope you could read and recite properly. So now we'll recite the Narasimha mantra. Ugram Veeram Mahavishtum Jalantam Sarvatomukam Narsingham Vishanam Bhadram Mrityur Namamiham. Ugram Veeram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukam Narsingham Vishanam Bhadram Mrityur Namamiham. Ugram Veeram Mahavishnu Jalantam Sarvatomukam Narsingham Vishanam Bhadram Mrityum Namamiham. I bow down to Lord Narasimha, who is ferocious and heroic like Lord Vishnu. He is burning from every side. He is terrific, auspicious, and death personified. Jai Shri Prahlad Narasimha Deva Ki Jai. Jai Shri Prabhupada. So, thank you so much. So, we will now read our Bhagavad Gita. We are reading verses 35. Ronnie, Prabhu, do 35 from today? Okay. Anybody would like to sing verse 35? No one? Okay. So I will start. 35 is the, अब हम देख रहे हैं कैसे कि जो अभी जो लास्ट के 3 वर्सेस हैं 35, 36, 37, तो इसमें जो भगवान कृष्ण जब उनको अर्जुन को कर्मकांड की तरह से समझा रहे हैं, तो ये लास्ट का पोर्शन है उस कर्मकांड से, क्योंकि पहले उन्होंने उनको आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा से समझाया कि आत्मा की कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, तो कौन किसी को मारेगा और कौन मरेगा। और उसके बाद जो है अर्जुन के जो तर्क हैं कि हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको वो फिर एंजॉयमेंट को वो एंजॉयमेंट के लेवल पे आके, कर्मकांड के लेवल पे आके अर्जुन को समझाते हैं कि क्षत्रिय का धर्म अगर आप निभाएंगे तो आप या तो राज्य को विजयी होंगे और या आप स्वर्ग को प्राप्ति होगी मृत्यु के बाद, तो दोनों ही केस में आपके you will enjoy more. So this is the verse today now 35. Bhyadrinadupritam mamsayante tvam maharati yesham cha tvam bahumato bhutva yasyasi lagavam. Bhyat, out of fear, ranat, from the battlefield, upritam, ceased, manshayante, will consider, tvam, unto you, maharatha, the great generals, yesham, of those who, cha, also, tvam, you, bahumata, in great estimation, bhutva, will become, yasyasi, will go, lagavam, decrease in value. Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you a coward. So, Bhyat Rinat Upratam. They will think he has run from the battlefield. युद्ध से भाग के अर्जुन चले गए, ऐसा बोलेंगे वो लोग, जिसे हमने कल बात कर रहे थे कि they will not see his consciousness but they will see his actions. और उसका एक रीजन ये है कि जब इतने सालों के बाद, क्योंकि उनमें क्षत्रिय कुल है, कि वो 13 साल वनवास रह के, और सबको पता था युद्ध होगा और दोनों तरफ से जोड़ तोड़ चल रही थी कि कैसे वापिस आएंगे पांडव, तो कौरवों ने ये सोचा था कि इनको हम राज्य नहीं देंगे,
और उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जो आसपास के राजा हैं, जो दूर दूर के राजा हैं, उनके साथ संबंध बनाए, अपनी लड़कियां उनके साथ ब्याही, उनकी लड़कियों के साथ अपने लड़कों की शादी करा दी, ताकि वो उसका जो क्या कह सकते हैं कि संबंध बनते जाएं और वो कौरवों की तरफ से ही युद्ध करें। और इसी तरह से जब वो जो पांडव हैं उनको भी पता था कि ये जो भाई हैं ये ऐसे दुष्ट हैं कि जब ये वापस आएंगे तो ये इनका जो राज्य है ये इनकी मंशा नहीं है देने की, क्योंकि इन्होंने जुए में छल से इसीलिए बाहर भेजा ताकि जो प्रजा से और राजपाट से इनका कनेक्शन हमेशा के लिए कट हो जाए, और धोखे से उन्होंने कराया। और तो इसी से जो क्षत्रिय, क्योंकि वो क्षत्रिय खून है, जब वापस आए सो दे आस्क्ड कि गिव अस आवर राज्य बैक। और शायद आप लोगों को पता हो कि जब ये सारा जो 64 बिछी और जो ध्रुतगीड़ा के अंदर, जुए के अंदर जब ये हारे, उसके पहले का प्रसंग यही है कि जो धृतराष्ट्र हैं उनको सब तरह से यही एडवाइस मिलती है कि आप युधिष्ठिर को राज्य सौंपिए, क्योंकि वही सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उन्हीं के पिता जो पांडु हैं वही राजा थे, और क्योंकि वो जंगल में चले गए ऋषि के श्राप के बाद, और एज ए केयर टेकर ही वाज a caretaker king, like that. जैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सिमिलरली ही वाज ए केयर टेकर किंग। और बाद में जो बच्चों में भी जो जन्म हुआ, युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ, और असली राजा जो एक्चुअल राजा के जो बड़े पुत्र होने के नाते उन्हीं का अधिकार था। और इसी के ऊपर जो है अनाउंसमेंट होने वाली थी कि कैसे जो युधिष्ठिर हैं वही उन्हीं को किंग बनाया जाएगा, उन्हीं को राजा बनाया जाएगा। और उस वक्त जो है, जो जलन के मारे जो दुर्योधन है वो शकुनी के साथ और कर्ण के साथ मिलके बैठता है कि क्या किया जाए, और दुशासन चारों लोग बैठते हैं, और फिर वो चारों के चारों उनको शकुनी प्लान बताता है कि हम इनको ध्रुतगीड़ा में बुला के वहाँ जुए में हराएंगे, और फिर इनको हम कुछ न कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि राज्य से बाहर चले जाए। और फिर जो दुर्योधन है वो अपने पिता के पास जाके उनको न्योता देने के लिए बुलाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर न्योता हम लोग देंगे तो नहीं आएंगे, और अगर पिताजी बुलाएंगे तो बड़ों का आदर रखने के लिए दे विल कम। सो इसी तरह से उनको जुए में हरा कर उनको बाहर भेजा गया। और जब वो वापस आए तो क्योंकि क्षत्रिय खून था, तो उनको ये नहीं था कि हम राजकाज छोड़ के वानप्रस्थ हो जाइए या संन्यास ले लें। They came to ask what was rightly theirs. So this is the क्षत्रिय, जिसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि क्षत्रिय जो एक वर्ण है वो बड़ा ही उच्च माना गया है, और their right or somebody's right, they can give up their life. और प्रभुपाद इसी लेक्चर को देते हुए एक बताते हैं कि कैसे बहुत 300 साल पहले एक राजा होते थे जिनका नाम था यशोमंत सेन, और वो औरंगजेब के ही वाज लाइक ए चीफ कमांडर और औरंगजेब। और एक बार जो यशोमंत सेन है युद्ध में हार गए, और युद्ध में हार के वो अपने घर वापस आए। और जब वो घर वापस आए तो उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे जो पति हैं युद्ध में हार गए हैं, और वो युद्ध में हार के घर वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने जो भी घर के नौकर चाकर थे उनको बोल के केयरटेकर को जो उनका जो महल है उसके बाहर जो है अंदर से उसको कुंडी लगा ली। और जब यशोमंत सेन आए वापस तो उन्होंने देखा कि महल बाहर से बंद है। उन्होंने खड़काया, और जो केयरटेकर है वो आया और उन्होंने मैसेज भेजा। उन्होंने पूछा कि ये बंद क्यों है, तो उन्होंने बोला कि महारानी ने मना किया है कि दरवाज़ा नहीं खोलना। तो उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि मैं आया हूँ और मैं वापस घर आया हूँ और इसका दरवाज़ा खोलें। तो जो केयरटेकर हैं, जो भी उनके पहरेदार हैं, वो अंदर जाते हैं और रानी को बताते हैं कि कैसे महाराज आए हैं, और कह रहे हैं कि अपना जो द्वार खोलिए। तो जो रानी है उनकी यशोमंत सेन की जो पत्नी है वो बोलती है कि कौन सा राजा आया है। वो कहते हैं कि जो मेरे पति हैं यशोमंत सेन, वो तो कभी भी हार के वापस नहीं आ सकते। तो या तो
वो जीत के आएंगे या he will lay down his life. दो ही ऑप्शंस हैं. सो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वो कोई ढोंगी ही हो सकता है. वो मेरे पति नहीं हो सकते, तो उनको बोलिए चली जाए. And she didn't open the door. So this is the Kshatriya. This is the Kshatriya Khun. This is the female Kshatriya. You can see. So how powerful is the spirit of Kshatriya. तो इन्हीं से यहाँ से बात हो रही है कैसे कि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि Lord Krishna continued to give his verdict to Arjun. Do not think that the great generals like Duryodhan, Karan, and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो जो वापस हैं इसलिए नहीं आए हैं कि समझौता करने के लिए, बल्कि इनको पता था युद्ध होगा और युद्ध में आए. और अब युद्ध में युद्ध से पहले की भी स्टेज नहीं है, बल्कि युद्ध में सैनिक दोनों तरफ खड़े हैं, जो अपने अपने जिन्होंने शंख है वो बजा चुके हैं, और अब लड़ाई करने का टाइम आया. तो अगर इस वक्त अगर पीठ दिखाएंगे, एवरीबडी विल थिंक ही इज अ कॉवर्ड. दे विल नॉट थिंक, दे विल जस्ट थिंक कि अर्जुन हैज गॉट ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जो बड़े राजा हैं उनको देख के ये डर गए और ये भाग गए. लाइक दिस कृष्ण इज उनको जो है ही इज पोकिंग है. अगला श्लोक पढ़ते हैं. अवाच्य वादांशा बहु विद्यशन्ति त्वाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखा तरम नु किम. क्या कह रहे हैं कि your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Because एक क्षत्रिय के लिए जो अपमान है वो क्या है, वो it is worse than the death. ये हमने पहले भी I think we discussed कि कैसे एक बार जो अर्जुन है इन्होंने कसम खाई होती है, इससे कह रहे हैं वाओ कि anybody who will tell me that मैं अपना गांडीव छोड़ दूं, so I will kill him like this. और एक बार युद्ध के अंदर जब ये युद्ध कर रहे होते हैं, so युधिष्ठिर is fighting with Karna, और that time युधिष्ठिर gets injured, और जो उनका जो चैरियटर है, जो साथी है, कि और घायल ना हो जाए, युधिष्ठिर को वापस अपने खेमे में ले आते हैं. और जब पता चलता है अर्जुन को कि जो बड़े भाई हैं वो he has got hit, सो फटाफट भागते हैं युद्ध के अंदर से और युधिष्ठिर को मिलने के लिए. और जब वो वहाँ खेमे में देखते हैं और पूछते हैं तो युधिष्ठिर थिंकिंग अर्जुन हैज कम, ही थिंक्स कि बिकॉज कर्ण ने मेरे पे अटैक किया तो ये कर्ण को वध करके मेरे पास आया है. सो ही सेज अर्जुन वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए और क्या आप कर्ण का वध करके आए हैं? तो वो अर्जुन बोलते हैं नहीं, मैं तो वध करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने सुना कि आप घायल हो गए युद्ध में, तो मैं एकदम आपका हालचाल पूछने के लिए चला आया. तो उस वक्त जो है जो युधिष्ठिर है वो बहुत ही क्रोधित होते हैं और वो उसको बोलते हैं कि आप युद्ध में ऐसे पीछे दिखा के चले आए कि क्षत्रिय धर्म नहीं है, बल्कि आपको जो है वहां पर उससे युद्ध करके कर्ण से उसका वध करके आना चाहिए था, और कायरता की तरह आ गए. यू आर नॉट फिट टू कैरी दिस गांडी. और उस वक्त जो अर्जुन है उसको अपनी प्रतिज्ञा याद आती है और ही गेट्स वेरी अपसेट, और वो बोलते हैं कि आई हैव टेकन ए वॉव कि जो भी मेरे को कभी भी कोई बोलेगा कि मैं गांडीव जो है धनुष छोड़ दूं, सो आई विल किल हिम. सो नाउ बिकॉज आई हैव टेकन ए वॉव, देन दैट वॉव कैन नॉट गो बैक, सो नाउ आई हैव टू किल यू. एंड दैट टाइम कृष्णा इज आल्सो देयर विद हिम एंड ही सेज व्हाट आर यू डूइंग, दैट जैसे कोई बड़ा यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड टू यू, कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या सोच रहे हैं. ये आपके जिनका आप वध करने की बात कर रहे हैं वो आपके राजा हैं, और बल्कि राजा के साथ बड़े भाई भी हैं. हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? सो अर्जुन सेज यस आई नो, बट मैंने एक वॉव ली है कि कोई भी मुझे ऐसे बोलेगा सो आई विल किल हिम. दिस इज अ वॉव आई हैव टेकन, सो आई कैन नॉट ब्रेक माय वॉव, सो आई विल किल हिम. सो दैट टाइम कृष्णा ही टेल्स हिम, गाइड्स हिम कि ओके, कि फॉर अ क्षत्रिय जो
एक अपमान है वो मृत्यु से भी बड़ा है. तो you can insult Yudhishthir like this. So that time, then he insults Yudhishthir. He just says few sarcastic remarks about him. कि आपने जुआ खेला, हार गए, ये हुआ, वो हुआ, like this. और उसके बाद फिर वो अपना प्राण देने के लिए उत्साहित हो जाते हैं. वो बोलते हैं मैंने अपने बड़े भाई का इतना अपमान किया, अब मैं अपने प्राण दे दूंगा. Then Krishna again says कि okay, no problem, you just wait because you have to fight. So he says that if you praise somebody like that, so that is it will nullify what you have done. So फिर वो बड़े भाई के पैरों में गिर के बड़ा उनका प्रेज करते हैं, उनकी गुणों की करते हैं, not a flattery way but his real qualities की उनका गुणगान करते हैं और माफी मांगते हैं युधिष्ठिर को माफ करें. तो हम देखते हैं, देखिए इन सारे ये जो घटनाएं हैं, इनसे हम देखते हैं कि कैसे जो क्षत्रिय हैं उनके लिए जो उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो इज्जत है, जो मान है, वो प्राणों से भी बढ़ के है. तो इसीलिए उनको कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, देखिए कि your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What would be more painful for you? Because this is more painful than death for a Kshatriya. Purport. Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjun's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. So non-Aryans, इसमें प्रभुपाद बताते हैं कैसे कि जो आर्य हैं, संस्कृति है, दैट इज अ वैदिक संस्कृति. और आसू में लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे जब परशुराम ने वध किया क्षत्रियों का, और बिकॉज द क्षत्रियज आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू ब्राह्मण्स, उन्होंने देखा कि जो क्षत्रिय हैं ये धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने 21 जो है उनकी जो जनरेशंस हैं उनका वध किया. तो प्रभुपाद सेड दैट मेनी क्षत्रियज दे रैन अवे फ्रॉम इंडिया, the subcontinent they ran away. So he says that many of them they settled in Greece, Turkey, Spain. So he says all those उनके जो पूर्वज हैं उस समय के हैं जो यहाँ से भारतवर्ष से भाग के चले गए जब परशुराम सारे क्षत्रिय को मार रहे थे. Now in so many, आगे लिखते हैं प्रभुपाद, now in so many words he has proved his statements against Arjun's so-called compassion. तो बता रहे हैं कि जो भी आप दिखा रहे हैं कंपैशन, it is not right. So 37th श्लोक है, अतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्तसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया. Translation: O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination. Even though there was even though there was no certainty of victory for Arjun's side, he still had to fight. For even being killed there, he could be elevated into the heavenly planets. ये पढ़ते हैं हम कैसे कि ये जो 3 वर्ष है, उसके बाद जो लास्ट वर्स है 38, जो नेक्स्ट वर्स है सॉरी, उसमें से मूड चेंज हो जाएगा. अब डिफरेंट, कृष्णा विल एक्सप्लेन देम इन अ डिफरेंट मैनर टू अर्जुन. सो मेन थिंग इज कि जो क्षत्रिय हैं उनका जो उनकी जो ग्लोरीज हैं, ये अगर अर्जुन नहीं कर पाता है, सो देन इट विल बी वेरी बैड थिंग ऑन हिज होल जो उनका जो वंश है. और ऑल्सो कृष्ण पहले भी बोलते हैं कि ऑन माई फ्रेंड ऑल्सो, कि कृष्ण उनके इतने प्रिय हैं कि उनके सारथी बन के तैयार हो गए. और बाद में लोग अपशब्द बोलेंगे कि कैसा कृष्ण ने दोस्ती की किसी व्यक्ति से. और जो क्षत्रिय हैं हमने ये भी देखा कैसे कि दे आर ऑल्सो अलाउड टू डू वायलेंस. वायलेंस प्रभुपाद लिखते हैं, वायलेंस कैन लीड टू पाप, violence can lead to punya also. So it depends upon the consciousness with which the violence is done. और जो ब्राह्मण है वो कभी भी they never do violence. Brahmins never do violence. So और जब भी अगर कभी भी हिंसा की जरूरत भी पड़ती है, then a Brahman will never kill personally.
he will bring the matter to the attention of a Kshatriya. इसका जो एग्जाम्पल है that is विश्वामित्र. हम पढ़ते हैं कैसे कि जब कुछ दानव ऋषि मुनियों को तंग कर रहे थे तब जंगल में, और तब जो है जो विश्वामित्र जो है दो he could kill them, वो अपनी शक्ति से अपने तेज से उन दानवों को मार सकते थे, पर उन्होंने मारा नहीं, बल्कि he went to महाराज दशरथ. महाराज दशरथ के पास गए और उन्होंने तब वो जो बहुत छोटे थे रामचंद्र मेरे ख्याल से आई थिंक ही वाज 15 और 16 ईयर ओल्ड, तब उन्होंने उनको बोला कि आप आइए और इनको भेजिए, पुत्रों को चाहिए मुझे आपके, ताकि मैं इनको साथ ले जाऊं और ये जो दानव जो मुझे तंग कर रहे हैं ये उनको हत्या कर सके, उनको वध कर सके, ताकि हम जो ऋषि मुनि हैं ये पीसफुली दे कैन डू ये यज्ञ और मेडिटेशन एंड ऑल दैट. So only the Kshatriyas are allowed to kill. Brahmins don't kill, and Vaishyas and Shudras also are not supposed to kill. So killing part is there, allowed only for Kshatriya. इसीलिए जो क्षत्रिय हैं उनके लिए character is very important. Not skill is okay, skill anybody can get, but character is very important because then they can use जो उनकी जो power है they can use properly. इसीलिए जो भगवान है वो चाहते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर जो अब सम्राट बनेगा it should be धार्मिक राजा, not अधार्मिक people like दुर्योधन. Because जैसे राजा करता है कार्य प्रजा भी वैसे ही फॉलो करती है. So that is why Krishna had made up his mind that these people will not rule the earth planet, because that time raja means samrat, which means that you rule the whole planet like this. So this is our today's 3 verses जो हमारे कर्म कांड के थे वो आज वो हमारे खत्म हो गए. तो अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है तो we can discuss. Yes, सुधीर प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी ब्राह्मण थे. yes एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द वार, और उन्होंने मारा भी है लोगों को. yes तो ऐसा क्यों? क्योंकि they was जब वो they were under the they were not independent, they were maintained by the kingdom. They were not independent. Dronacharya also came from outside, and the Raja asked them to fight from their side. Brahman can fight also, Prabhuji. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण fight नहीं कर सकता. Usually in a normal day to day they don't fight, but यहाँ पर तो पूरे राज्य के ऊपर की बनी आई है कि पूरा साम्राज्य ही चला जाएगा. So then the Dhritarashtra asked, and they were under the shelter of Dhritarashtra. So he asked fight, and they fought. But आप otherwise आप पढ़ेंगे तो they never fought. कभी भी they Dronacharya he never fought. Like even with Drupad, he could have defeated Drupad because जब Drupad से भी इनका युद्ध हुआ, जब वो Drupad इनका अपमान करते हैं, even that time he had enough power to to do, but he didn't do it directly like this. But when the king asked, because they are maintained by the king, so when the king asked you fight, they fought. Thank you, Prabhu. Thank you. So और कोई प्रश्न या टिप्पणी? यस शिवानी माता जी. हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि वॉर में पितामह को इसलिए वो बोलते हैं कि बिकॉज उन्होंने कौरवों का साथ दिया था चौसर के टाइम पे, सो ही हैड टू सफर आल्सो. बट ऐसे चौसर के टाइम पे तो पांडव भी मतलब पांडव भी it was wrong to put on bet or something like that. तो प्रभु जी हम उनको wrong क्यों नहीं बोलते हैं? मैं समझा नहीं. Ronnie Prabhu, what is the question? Prabhuji, she's saying that we say Bhishma Pitama, he was wrong on the part because he didn't protest for Draupadi Chirharan, but we don't say Pandavas were wrong because they put Draupadi on bet in Chaucer. Okay. Yes, Mataji. Right. Okay. So yeah, Mataji, that was all arranged. You can say it is not कि they bet. उस वक्त का जो भी माहौल था, आप अगर महाभारत में पढ़ते हैं
तो वो उनको बोलते हैं कि अगर आप इनको बेट पे लगाएंगे तो वट एवर यू डन यू विल विन। और जो उन्होंने जो चौसर का जो सारा जो साजो सामान बनाया था वो इस हिसाब से बनाया था कि दैट दे 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 विल बी bewildered that time, you know. But I mean we can see from many angles, but basic thing was कि वो जो सारा जो उन्होंने वो बनाया था, does anybody remember क्या किया था उसने शकुनी ने, जो वो सारी जो वो एरिया था जहाँ पर वो what did he do जो एरिया था, anybody remember? So basically प्रभु जी एक तो ये है कि शकुनी ने वो किया था कि हाँ वो ही पासे फेंकेगा, और वो इतना माहिर था कि जितना जो नंबर मतलब चाहे वही नंबर आ सका। फर्स्ट तो यही था उनका। Okay. Second, so okay, there is one. Mataji, main thing is to accept a challenge. Okay, the Kshatriya doesn't refuse any challenge. So they say bet this, so they bet this. They say bet this, they bet this. Then in that heat of movement, they also bet Draupadi also. So was it proper? It was not proper, Mataji. It wasn't proper. But in a Kshatriya, they do not they accept all challenges, Mataji. Like that. It is like a, you can say, a game of sport. They have lost everything. They are saying इसको bet कर दीजिए तो हम ये कर देंगे इसको। तो जितनी वो उनको चुनौतियां देते गए, वो चुनौतियां वो एक्सेप्ट करते गए बात। और वन मोर थिंग प्रभु जी कि जब वो खेल रहे थे तो हर गेम के बाद वो ऑप्शन देते थे कि अगर आप ये नेक्स्ट वाला लगाओगे तो पिछला जो सा है हम सारा आपको दे देंगे। ये भी है, देखिए माताजी। And so, but main thing what comes to my heart, Mataji, is the challenge part. They challenge, okay, now you do this, we will do this. So now you do this. So whatever they had, because they are playing a game, और गेम के अंदर वो लगाते चले गए, करते चले गए। Yes, Prabhuji, but then like Bhishma Pitama was also following his duty, right? He was he took vow to the throne, so he was doing that duty. Then why we say that he was wrong on that part? Yes, of course, Mataji. Because अधर्म जब द्रौपदी का चीरहरण की बात हुई, जब कर्ण ने बोला कि इसको भरी सभा में बुलाया जाए, और फिर उन्हें कर्ण ने बोला कि द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने, कर्ण था जिन्होंने दुर्योधन को बोला कि इसका चीरहरण, इनके वस्त्र उतार दी जाए, कौरवों के भी और इनकी पत्नी के भी। और दैट टाइम जो सारे राजा के सभा में बैठे हुए थे, दे ऑल केप्ट क्वाइट, बिकॉज जो आपकी जो क्या कह सकते हैं, जो आस्था है अपने एक राजा के प्रति, that should not bewilder you, should not to insult a woman in the court assembly in front of everybody like this. So all of them, जिन लोगों ने भी देखा वहां पर कि एक स्त्री का अपमान हुआ, you know, so they all had to suffer because भीष्म पितामह, अगर थोड़ा सा मुझे याद आता है, he tells that time that I am confused what to do, because she prays to भीष्म पितामह, और वो उस वक्त भीष्म पितामह ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा तर्क ऊपर है, कौन सा नीचे है। I am unable to see like that. But a wrong vow taken, we should have broken and saved the insult of a woman in the whole assembly. So they had to suffer. All of them had to suffer. जितने भी वहाँ बैठे थे, जिन्होंने वो देखा और जिन्होंने हाथ नहीं, जिन्होंने उसके ऊपर उसकी निंदा नहीं किया, रोका नहीं। I think एक ओनली सिर्फ कौरवों का जो स्टेप ब्रदर थे, he only objected that time. So they all had to suffer. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, उसमें एक एंगल ये भी था, एक्चुअली फ्यू डेज बैक ओनली आई वाज वाचिंग महाभारत, सो आई रिमेम्बर लिटिल बिट कि वो जो भी बेट लगा रहे थे उसमें वो एक धर्म का एंगल डाल रहे थे, और उसमें बोल रहे थे अगर आप ये नहीं फॉलो कर रहे हो बेट, दैट मीन्स कि आप धर्म को नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपको युधिष्ठिर आपको सब अधर्मी बोलेंगे। तो ऐसे करके वो हर बेट पे उनको मैनिपुलेशन में ला रहे थे। सो जब भीष्म पितामह का भी आया या द्रोणाचार्य का भी जब आया, उनको बोला गया कि आप द्रौपदी को बताइए,
तो उन्होंने सबको मैनिपुलेट कर दिया कि आप अपने राजा की बात को आपको माननी पड़ेगी। युधिष्ठिर को भी बोला कि आप अब हमारे नौकर बन गए हैं, तो अब नौकर, I mean, I don't want to actually speak longer, but I think कि हर बेट में वो एक धर्म का एंगल लाके उसको मैनिपुलेट करते थे। So that is another answer, Shivani Mataji, because मैंने ये प्रसंग नहीं पढ़ा है, so I cannot tell in big detail, Mataji. So I think निधि माताजी के जो आंसर थे quite logical. तो इस तरह से उन्होंने उकसा के माताजी, because they were not Kshatriyas, the Shakuni and all, they were clever politicians. You know, they were not warriors like that. So, you know, and they were simple Kshatriyas who thought in a good manner the sport is being played like that. Yes, Ruchi Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, my question is that yesterday you told that all the soldiers who died on the battlefield were liberated. Either they went to Vaikunt or they merged into Brahma Jyoti. So if they merge into Brahma Jyoti, do they not fall down again? Yes, Mataji, but still it's a very high platform. So one cannot say, it is like somebody will say, somebody went to Swarga. So he got very high benediction because जो क्षत्रिय हैं वो मर के स्वर्ग में जाते हैं. But question is, somebody will say कि स्वर्ग से भी तो बाहर नीचे गिर जाते हैं, because जब आपके पुण्य जो कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं, then you fall down from स्वर्ग also. So similarly, from Brahma Jyoti also one will fall down, but still it is a very high platform. So Prabhuji, we can we can say they are liberated in that case. Is it? Yes, Sayujya Mukti, because it is considered one type of Mukti, Mataji. जो मुक्ति है, जिससे जितने भी जो demons हैं, जो कृष्ण मारते हैं, जितने भी आप पढ़ते हैं कृष्ण बुक में, भागवतम में, what happens? They all merge into his body. पढ़ते हैं ना माताजी? अगासुर सब पढ़ते हैं कि कैसे, और even जरासंध, है ना? They all merge in his body. Why? Because they get Sayujya Mukti. Because it is very high platform. Because touching God, or God touching you, or you touching God means the same thing. You know, so instant thing is you get liberated. You know, जो भक्त लोग नहीं मानते हैं उसको एक्चुअली, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं या जो आचार्य हैं वो बहुत इसको गलत मानते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं कि जितने भी दानव हैं वो सारे ब्रह्म ज्योति में हैं. Why we want to go to the ब्रह्म ज्योति? You know, because all the demons are there. You know, like that. Why should we want to go and get association with the demons? You know. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you. Yes, Asha Mataji, Ashok Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है. एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाने की कोशिश करें कि आप शरीर में आत्मा है और आपका ये धर्म है, तो जब वो गुरुकुल जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो उस टाइम उनको फिर क्या शिक्षा मिलती है? मतलब जैसे उसको हम कैसे समझ सकते हैं, जब वो गुरुकुल जाते हैं वहाँ पे उनको कुछ शिक्षा मिली थी या नहीं मिली थी, या फिर आखिरी आर्ट ही जब सीखने गए थे, कैसे इसको समझ सकते हैं प्रभु जी? I cannot understand. Ronnie Prabhu, what is Prabhu saying? Could you hear? It was breaking. Even I was also not able to figure it out. Prabhu, can you थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको शिव प्रभु. I can't hear. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाने की कोशिश करें कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है और आपका ये धर्म है और ये धर्म है, तो जब वो गुरुकुल में जाते हैं तो किस तरह की उनको फिर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं? जब वो गुरु द्रोण के पास जाते हैं तो क्या उस टाइम में हम ये समझ सकते हैं जैसे आज के हमारे समाज में शिक्षा की व्यवस्था है मटेरियलिस्टिक बॉडी से रिलेटेड है, तो उस टाइम भी इस तरह की मतलब बॉडी रिलेटेड ही एजुकेशन थी, सबके पास ऐसी शिक्षा थी, मतलब अलॉट कर रहे थे या देते थे, ऐसे कैसे समझे इसको? What did he saying, Ronnie Prabhu? प्रभु जी ये कह रहे हैं कि ना भगवान जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि ये तुम आत्मा हो और तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन जो अर्जुन है जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे तो वहां पे उन्होंने किस टाइप की शिक्षा ली? वहां पे उनको इस तरीके की शिक्षा नहीं दी गई थी. यही है ना क्वेश्चन अशोक प्रभु आपका? यस माता जी, थैंक यू. See, he had so two things. One, इनको सारी शिक्षा दी गई है जो आत्मा का ज्ञान है और जो है सारी शिक्षा दी गई है. बट उस वक्त क्या है, जो अर्जुन है
he was made bewildered by Krishna's Yog Maya. ऐसा नहीं है कि he didn't know what is the thing. It is only हम लोगों को ये ज्ञान देने के लिए तो वो अर्जुन को निमित्त मात्र बनाते हैं. ऐसे भगवान बोलते हैं अर्जुन को निमित्त मात्र, become my instrument. So at that time he is bewildered. Otherwise he had complete knowledge. Not because और knowledge को छोड़िए, he is वो जो है भगवान के क्या है, अत्यंत प्रिय नित्य सखा है भगवान के. So he has complete knowledge. But at that time Krishna makes him bewildered. वो तो जो knowledge है आत्मा की, आप देखते हैं हिरण्यकश्यप speaks that knowledge, है ना. कंस speaks that knowledge. जब वो कंस जो है माफी मांगते हैं और वो देखते हैं कि वो जो आठवां जो है पुत्र नहीं पुत्री हुई, और वो समझ जाते हैं कि अभी कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये तो और जो छोटी बेटी है उसको भी नहीं मार पाते हैं. एंड शी सेज कि वो जो आपको मारने वाला था उसका जन्म हो गया. सो ही अंडरस्टैंड समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. तो फटाफट सारी जो फिलॉसफियां सुना देते हैं कि इससे हुआ और ये आत्मा है और कोई मरता नहीं है, लाइक दैट. सो ऑल दिस नॉलेज इज नोन टू देम. To everybody it is known, but उस वक्त युद्ध के दौरान then Krishna makes Arjun bewildered, ताकि he can ask that question हमारे benefit के लिए, वो हमसे वो कृष्ण से प्रश्न पूछ सके, और जो भगवान है वो भगवत गीता के ये सारे श्लोक बोल सके. प्रभु जी. हाँ जी, ठीक है. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस, हरे कृष्ण. हाँ प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला था कि अर्जुन भगवान के निश्चय पार्षद है, मतलब एंड वेयरएवर मतलब लॉर्ड प्लेज हिज लीला सो ही आल्सो अकम्पनीज हिम. तो हर लीला में भगवान मतलब अर्जुन प्लेज द सेम रोल ऑफ अर्जुन और ही प्लेज अनदर रोल आल्सो, मतलब विद लॉर्ड. सेम अर्जुन प्रभु जी. इन ऑल द लीला वेयरएवर लॉर्ड. गॉट इट. थैंक यू. सेम सोल, सेम. थैंक यू. ठीक है. So, प्रभु जी, आई थिंक प्रभु जी पूछ रहे सारी लीलास में भी अर्जुन रहते हैं. हाँ, जहाँ भी भगवान की जो महाभारत वाली जो रोड शो चलता है, ये लीला जहाँ भी होती है, वहाँ किसी भी युग में कहीं भी किसी भी डिफरेंट क्या बोलते हैं यूनिवर्स के अंदर, इन ऑल द यूनिवर्सेस वेयर द लीला इज हैपनिंग, इट इज द सेम अर्जुन हु इज प्लेइंग दैट रोल ऑफ अर्जुन. एंड रामायण में नहीं रहते हैं. व्हाट इज इन रामायण माता जी? In Ramayan and other leelas of भगवान, उसमें क्या है रामायण में? उसमें अर्जुन जी रहते हैं उनके साथ. हमें नहीं माता जी, उसमें तो अर्जुन नहीं रहते हैं. अर्जुन जो है, जब कृष्ण जब स्वयं वो आते हैं, स्वयं भगवान के रूप में जब कृष्ण आते हैं जिस यूनिवर्स में, लाइक दिस 28 डे ऑफ ब्रह्मा, तो जहाँ वो आते हैं देन वहाँ अर्जुन goes. He doesn't come in Lord Ram is a Leela avatar. He is expansion of the expansion of the expansion of the expansion of the expansion of Krishna, like that. You understand? He's expansion of his expansion of his expansion of his expansion, like that. So Arjun comes in Krishna Leela. At least I am not aware he comes in Ramayana. I am not aware. Okay. ठीक है. So आज हम टाइम पे खत्म कर रहे हैं. 10:35. Oh, there are some messages on the chat. 1 second. So Megha Mataji is saying, 1 second. Oh, so we have a new member, Abhinav Dwivedi Prabhu. Abhinav Dwivedi Prabhu is there. Okay, welcome to our online sessions, Abhinav Prabhu. I hope you found it meaningful to be here with us today. Thank you for joining us. और नेहा माता जी saying thank you so much प्रभु जी. और thank you नेहा माता जी, आज आपने वर्ष नहीं सुनाया, सबसे पहले आप हाथ खड़ा करते हैं. मेघा माता जी, can we say शकुनिवास? कूटनीतिज्ञ. इतना तो मुझे भी नहीं. कूटनीतिज्ञ means like a diplomat. Yes माता जी, like he was a politician. Yes, we can say माता जी. Yes. Okay. Then Ruchi Mataji is saying Hare Krishna to all the devotees. And then Sudhir Prabhu is saying Hare Krishna Prabhu, thank you so much. So thank you so very much. And we'll meet tomorrow again. We'll end the class now.
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे विश्वेशशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna.